Assalamu alaikum. Today I am going to teach you the last topic of the financial markets, that is, are the financial markets efficient? Before starting this chapter, I am going to discuss the previous chapter. I am going to discuss the summary. The previous chapter is all about that why interest rate changes. In the previous chapter we discussed that what are the main factors that influence the interest rate. First, we discussed the determinants of the asset demand. We discussed that there are four types of the determinants of the asset, that is wealth, liquidity, expected return, and risk. Then we discussed that how demand of the asset will be influenced by these factors. We discussed that the wealth, expected returns, and the liquidity has a positive relationship with the quantity demanded of the asset. If the wealth of the economy, liquidity of the asset, or the expected return of the asset are going to increase, it means that quantity demanded of that asset will also be increased. But in the case of the riskiness of the asset, if the riskiness increases, the quantity demand of the asset decreases. This means that risk and the quantity demand of that asset has a negative relationship. Then we discussed the demand and supply curve. We discussed the concept of excess demand, excess supply, and the market equilibrium. Then what is the market equilibrium? Market equilibrium is the point where the quantity demanded of the asset equals the quantity supply of that asset. Then we discuss the Fisher effect, that means the relationship between the interest rate and the inflation rate. Then we discuss that how inflation and interest rate are moving positively in the business expansion cycle, and what are the movements of the interest rate and inflation rate in the recession phase. Then in the last we discussed that why forecasting interest rate is important and what are the factors that are helpful in forecasting the interest rate. First of all, interest rate can be forecasted by the demand and the supply curve, means demand and supply of that bond. Secondly, with the help of the econometric models, you can forecast the interest rate more precisely and accurately. And that helps to forecasting interest rate is an important issue while investing or making any investment. This is all about the previous lecture. Today we are going to discuss the last topic of the financial markets. In the next lecture we discussed about the other components of the financial institutions. Now you all are very well of the word financial markets. Before starting, are the financial market efficient? I think I would like to give you a brief overview of the financial market, a brief description of the financial market. You all are very much aware that financial markets are the markets in which funds are transferred from the people who don't have the productive use or saver to those people who have a productive use of it or borrower. ठीक है? अब financial markets basically involve the transferability of the funds. Then we also discussed the structure of the financial markets in the previous lectures. We discussed that how financial markets are important in economic growth. Then we discussed that how financial markets affects funds' personal wealth, how financial market has an important impact or effect on the production of goods and services. Then we also discussed that how financial markets are crucial in enhancing the economic growth and economic development of any country. आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, expectations are very important in our financial system. You all know about expectations. जिस तरह हमने previous lecture में expected return की बात की थी. Expectations are very important in our financial system. Today we discuss that expectations of returns, risk and liquidity impact asset demand. अभी आपने पिछले लेक्चर में देखा था कैसे आपकी expected returns आपकी quantity demanded of that asset को impact करते, कैसे risk करता है, कैसे liquidity करता है. Then expectations of the inflation have a major impact on bond prices and the interest rate.
कैसे आपकी इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इफेक्ट करती हैं इंटरेस्ट रेट को या बॉन्ड प्राइस को. Expectations not only affect our understanding of markets but also how financial institutions operate. It means that expectations are playing a crucial role in our financial system. To better understand expectation, we examine the efficient market hypothesis. We studied EMH. Efficient market hypothesis को हम EMH कहेंगे. That is a framework for understanding what information is useful and what is not. However, we need to validate the hypothesis with the real market data. The results are mixed but generally supportive of the idea. In sum, we will look at the basic reasoning behind the efficient market hypothesis. We studied the empirical evidence while examining this idea. Today our topics: the first of all, we discussed about the efficient market hypothesis. Then we discussed the evidence on the efficient market hypothesis, and third one is behavioral finance. ये तीन टॉपिक हैं. आज का जो लेक्चर है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर, जो हमारे दो लेक्चर्स हैं उनके मुकाबले में इंटरेस्टिंग होगा. आपको थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होगा इसमें, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में तो हम मार्केट्स, उसकी इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्ट रेट और इन चीज़ों को, आज जो हम ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे वो अपने EMH थ्योरी के ऊपर रहेंगे. हमने जैसे इंफॉर्मेशन का वर्ड देखा था, हम बार बार ये देखेंगे कि हाउ इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इन द EMH, उसका क्या इम्पैक्ट है. So now we are going to start the topic. First of all, efficient market hypothesis हम देखेंगे. How does a market become efficient? क्योंकि आपको देखिए efficient से क्या पता, मार्केट आपका चैप्टर का नाम भी था इज मार्केट efficient. तो आप किसी भी मार्केट को कैसे efficient, उसे कहते क्या है. इस स्लाइड को करने से पहले आई थिंक मैं आपको एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ी सी सिंपल बता दूं कि वो होता क्या है. पहले हम ये वाली स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा पीछे वाली स्लाइड पे आएंगे, क्योंकि आप एफिशिएंट मार्केट बनने से पहले हम ये देख लें कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बेसिकली कहते किसे हैं. Efficient market hypothesis is also known as joint hypothesis problem. Asserts that financial markets are informationally efficient. Means that कि आपकी जो मार्केट्स हैं वो आपकी informationally efficient हैं. किस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मार्केट उसमें किस तरह efficiently अपना रोल प्ले करती है, मार्केट उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है इंफॉर्मेशन को. Efficient market hypothesis is also known as theory of the efficient capital markets, which states that prices of the securities in the financial market fully reflect all available information. कि आप इसको efficient capital market इसलिए कहते हैं कि ये स्टेट करता है कि जो प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज है फाइनेंशियल मार्केट में वो फुली रिफ्लेक्ट करती हैं ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन. अब efficient market hypothesis was developed by Eugene Fama at the University of Chicago Booth School of Business as an academic concept of study through his published PhD in the early 1960s. It was widely accepted till the 1990s. देखिए आपकी जो efficient market hypothesis की थ्योरी है वो यूगेन फॉर्मा का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा. जब भी हमने कहीं रिस्क की बात होगी तो फ्रेंच फॉर्मा का नाम आपने सुना होगा. फॉर्मा की बहुत ज्यादा रिसर्च है. आप जब भी मार्केट एफिशिएंसी को देखेंगे, आपकी कैपिटल मॉडल को देखेंगे, आप बिहेवियरल फाइनेंस की बात करेंगे तो वहां आप यूगेन फॉर्मा की रिसर्च को देखेंगे. अब जो थ्योरी ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस थी वो 1990 तक तो वाइडली एक्सेप्ट की गई, लेकिन जब बिहेवियरल फाइनेंस, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट इमर्ज हुए, देन क्या हुआ कि थोड़ा सा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की थ्योरी थोड़ी सी उस तरह वाइडली एक्सेप्टेड नहीं हुई, कुछ नई बिहेवियरल थ्योरीज आ गई. जो यूगेन फॉर्मा का जो व्यू था उसे हम ट्रेडिशनलिस्ट व्यू कहते हैं, और आजकल जो बिहेवियरल फाइनेंस में वो बिहेवियरिस्ट का व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस गिवन बाय यूगेन फॉर्मा. हाउ डज अ मार्केट बिकम एफिशिएंट? For a market to become efficient, investors must perceive that the market is inefficient and possible to beat. देखिए आप ये कहते हैं कि मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए जरूरी है कि इन्वेस्टर्स ये परसीव करें, ये मतलब अज्यूम करें कि मार्केट इज इनएफिशिएंट एंड पॉसिबल टू बीट.
कि वो देखें कि आप एफिशिएंट इन द सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है. Ironically, investment strategies intended to take advantage of inefficiencies are actually the fuel that keeps a market efficient. अब उसमें क्या है, a market has to be large and liquid. देखिए, आपके large number of buyers and sellers हों तो ही आप efficiently market को perceive कर सकते हैं. Accessibility and the cost information must be widely available and released to investors at more or less the same time. कि आपकी जो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी वाइडली, मतलब आपको हर तरह से आप अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें. ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैव टू बी चीपर देन एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स. Investors must also have enough funds to take advantage of inefficiency until according to EMH it disappears again. कि आप अपनी मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए आपने क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अज्यूम करना है कि आपकी मार्केट इनएफिशिएंट है. सेकंड, आपने देखना है कि आपकी मार्केट लार्ज है, लिक्विड मार्केट है. आपने ये देखना है कि आपके इन्वेस्टर्स को जो डेरिल इंफॉर्मेशन चाहिए क्या वो उनके पास है भी कि नहीं. देखिए, आप एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस थ्योरी के पीछे था क्या. देखिए, जब भी आप अपने पैसे एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट करते हैं, एज अ इंडिविजुअल करते हैं, तो आपका मेन गोल ये होता है कि आप उसके ऊपर रिटर्न्स जनरेट करें. ठीक है, आपका ये होता है कि आपको प्रॉफिटेबल, बिकॉज इफ देयर इज नो इंटेंशन ऑफ अ प्रॉफिट देयर इज नो बिजनेस. क्योंकि आप हमेशा आपका बिजनेस करने का जो गोल मेन मोटिव होता है वो होता है टू अर्न द प्रॉफिट. Many investors try not to make a profitable return, but also to outperform or beat the market. अब कुछ तो कहते हैं कि हमें रिटर्न्स मिलता रहे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं abnormal profits, more than the expected returns, हम लोग वो अर्न कर सकें, अपनी मार्केट को बीट कर सकें. However, market efficiency championed in the efficient market hypothesis formulated by Eugene Fama in 1970 suggests that at any given point प्राइजेस फुली रिफ्लेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट. यानी कि जो प्राइजेस हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन फुली रिफ्लेक्ट करें इन्फॉर्मेशन को, कि आपकी जो मार्केट्स हैं वो फुली आप वो उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली परसीव कर सकें. क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं कि आप कहते हैं हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको पता ही नहीं बिजनेस की नेचर क्या है, तो हाउ यू कैन मेक अ ट्रांजेक्शन, हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर. तो इसीलिए ये जो यूजीन फामा की जो स्टडी थी उसने कहा कि जो मार्केट एफिशिएंसी आप तब तक नहीं कैप्चर कर सकते जब तक प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज फुली रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन. And he was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences jointly with Robert Shiller and Lars in 2013. अपनी इसी थ्योरी के बेस पे उसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है. According to the EMH, no investor has an advantage in predicting a return on a stock price because no one has access to information not already available to anyone else. कि इन्वेस्टर जो है वो तब तक एडवांटेज नहीं ले सकता जब तक उसको इन्फॉर्मेशन की एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है. देखिए, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का बेसिकली जो मतलब है वो एक लाइन में जो हम इससे करते हैं, मार्केट्स आर इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट. कि आपके पास एफिशिएंट, आपका वर्ड ही आ रहा है एफिशिएंट, आपने अज्यूम आपने नहीं करना, बल्कि आपके पास मार्केट्स को एफिशिएंट होना चाहिए. और अगर हम अपने पाकिस्तानी मार्केट को और अपने डेवलप्ड मार्केट को देखें तो डेवलप्ड मार्केट, जैसे हमने जापान की मार्केट को कहा था, जर्मनी की, दीज आर द वर्ल्ड लीडिंग मार्केट्स, दैट आर द मोस्ट एफिशिएंट मार्केट्स. Before 1980s, American markets had a great dominance, but after 1980s, American dominance in the stock market is ended because of the many factors. अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं तो इट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, वीक फॉर्म एफिशिएंसी एंड सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी. स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी आप किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी मींस यू हैव ऑल द आउटसाइड इंफॉर्मेशन. वो आपको कैसे मिल सकती है? शेयर होल्डर्स से, स्टेक होल्डर्स से. ठीक है. In strong form efficiency, the share prices affect all information, public and private, and no one can earn excess returns. देखिए, जब तक आपका पब्लिक, तो एक तो वो इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिक वाली कंपनीज आपको, लेकिन एक जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है कि इस कंपनी के शेयर्स के होल्डर्स को जो पता होती है. इफ देयर आर लीगल बैरियर्स टू प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बिकमिंग पब्लिक एज विद इनसाइडर ट्रेडिंग लॉज, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल एक्सेप्ट इन द केस विद द लॉज आर यूनिवर्सली इग्नोर्ड.
इसमें क्या है कि आपकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी जो है उसमें ये है कि आपके शेयर्स में ना सिर्फ आउटसाइड इन्फॉर्मेशन आपके पास हो बल्कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन भी हो। जब तक आपके पास इनसाइड, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पे लीगल बैरियर्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब इस तरह होता है कि कुछ इनसाइड वहां पे आपके शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं जिनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए इसको कहा गया स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। क्योंकि जब आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप अपनी मार्केट्स में बहुत एफिशिएंट मार्केट्स आपकी होंगी और आप बहुत अच्छी तरह, क्योंकि यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आर अवेलेबल टू यू। To test for the strong firm efficiency, a market needs to exist where investors cannot consistently earn excess returns over a long period of time. और एक बात तो, जब आपके पास आपकी तमाम इंफॉर्मेशन होगी, जब इनसाइड एंड आउटसाइड, यू आर इन द पोजीशन टू अर्न द एबनॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, क्योंकि आप पूरी मार्केट को बीट कर देंगे। Even if some money managers are consistently observed to beat the market, no refutation even of strong firm efficiency follows. With hundreds of thousands of fund managers worldwide, even a normal distribution of returns. अब स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी आपको मैंने बताया, इसमें आपको आ जाता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी किसे कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी बेसिकली आपकी वो एफिशिएंसी है कि आप इतने ज्यादा एफिशिएंट हो कि आप आउटसाइड इंफॉर्मेशन के साथ साथ इनसाइड इंफॉर्मेशन को भी कैप्चर कर लें। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग आपको वर्ड डिपिक्ट कर रहा है कि पार्शियली you have information. It means that a publicly traded company, जो आपकी पास publicly जो traded companies की information होती है वो हो। In semi-strong efficiency, it is in semi-strong form efficiency, it is implied that share prices adjust to publicly available new information very rapidly and in unbiased fashion, such as that no excess returns can be earned by trading on that information. ये तो एक डेफिनेशन थी कि आप उसमें आपके पास पब्लिकली अवेलेबल न्यू इंफॉर्मेशन हो। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी implies that neither fundamental analysis nor technical analysis will be able to reliably produce excess returns। यानी आप देखिए कि आप ना तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस ना आपका टेक्निकल, फंडामेंटल एनालिसिस एक बेसिक एनालिसिस, टेक्निकल दोनों मिलके भी आपको इस काबिल नहीं करते कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की तरफ जा सकें। यानी आप एबनॉर्मल एक्सपेक्टेड, आपको रिटर्न्स तो मिलेंगे लेकिन एबनॉर्मल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। To test for the semi-strong efficiency, the adjustment to previously unknown news must be of the reasonable size and must be instantaneous। कि आपने अपनी सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी को टेस्ट करना है तो जो आपकी एडजस्टमेंट्स है टू प्रीवियसली नोन न्यूज वो मस्ट बी ऑफ द रीजनेबल साइज। ठीक है, आपको उसके बारे में पता हो। फिर आपने ये देखना है कि क्या वो कंसिस्टेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड एडजस्टमेंट्स किस तरह हो रही हैं, इनिशियल चेंजिंग्स क्या हैं। देन आप यू आर इन द पोजीशन कि आप अपनी मार्केट को एफिशिएंटली देख सकते हैं। आपने ये देखना है कि वो कैसे न्यूज का पहले मतलब आपने लॉन्ग रन में जाके देखना है कि इनिशियल चेंजिंग्स क्या थी और अपवर्ड और डाउनवर्ड एडजस्टमेंट्स क्या हैं। वीक फॉर्म एफिशिएंसी, वीक फॉर्म आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि आप वीकेस्ट फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है। इसमें क्या है, in the weak form efficiency future prices cannot be predicted by analyzing prices from the past। कि यानी आपको पास past prices information तो है लेकिन जो future changings है वो past prices के ऊपर नहीं हो रहा। देखिए ऐसा होता है कि आप अपने past prices के ऊपर अपने future को anticipate कर लेते हो, आप अपने future को forecast कर लेते हो। जिस तरह हमने बात की थी कि अगर आपके पास previous data है तो econometrics models जो हैं वो आपके interest rate को capture कर लेंगे कि उनकी future क्या वैल्यू होगी, लेकिन वीक फॉर्म एफिशिएंसी में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्सेस रिटर्न्स कैन नॉट बी अर्न इन द लॉन्ग रन बाय यूजिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल शेयर प्राइसेस। देखिए आपके पास प्रीवियस एग्जांपल है लेकिन आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं अर्न कर सकते हैं। इसमें आप दो तरह के एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस को और फंडामेंटल को। टेक्निकल एनालिसिस टेक्निक्स विल नॉट बी एबल टू कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस एक्सेस रिटर्न्स, दो सम फॉर्म्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस में स्टिल प्रोवाइड एक्सेस रिटर्न्स। कि टेक्निकल एनालिसिस में आपको एक्सेस रिटर्न्स नहीं मिल रहे लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आपको एक्सेस रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि द सॉफ्ट ईएमआई डज नॉट रिक्वायर दैट प्राइसेस रिमेन एट और नियर द इक्विलिब्रियम but only that market participants not be able
to systematically profit from the market inefficiencies. देखिए हमने देखा कि पहले हमने देखा कि आपकी जो मार्केट्स हैं वो आपकी मार्केट एफिशिएंट क्या होता है, कि आपने एफिशिएंसी को देखा कि आप बिफोर स्टार्टिंग द अदर टॉपिक पहले इसको हल्का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए, आप अच्छी तरह इनके दरमियान डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लें. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक्स. पहले आपने मार्केट की बात की, आपने कहा एफिशिएंट मार्केट. एफिशिएंट मार्केट आर दोज मार्केट्स विच आर इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट. फिर आपने बात की कि आपकी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को कैटेगराइज किया जा रहा है 3 फॉर्म में. स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, ये वो फॉर्म है जिसमें आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी पता हो, इनसाइड द कंपनी क्या हो रहा है, जो इनसाइडर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं. और अगर आपको वो इंफॉर्मेशन आ जाए, यू आर इन द पोजीशन टू अर्न द एबनॉर्मल रिटर्न्स. फिर आपकी सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी है. सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी है जिसके ऊपर आपके पास पब्लिकल इंफॉर्मेशन है. और फिर आपकी वीक फॉर्म एफिशिएंसी जिसके ऊपर पास्ट आप हिस्टोरिकल प्राइसेस के ऊपर कितनी देर आप अपने फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर सकते हैं. यू आर नॉट इन द एबल टू प्रोडिक्ट फ्यूचर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल प्राइसेस. अब हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कंसेप्ट को देखते हैं. रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 3. चैप्टर 3 में हमने बात की थी इंटरेस्ट रेट की, रेट ऑफ रिटर्न की. तो रेट ऑफ रिटर्न किसे कहते हैं? रेट ऑफ रिटर्न फॉर एनी पोजीशन सम ऑफ द कैपिटल गेन्स प्लस एनी कैश पेमेंट, कि आपके कैपिटल गेन्स कितने हुए थे. आपने देखा, आपने अपने रिटर्न को देखा. रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली कैसे कहते किसे हैं? रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. लाइक देखिए आपके पास अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको कहा जाता है कि 10 सालों के बाद आपको ये मिलेगा, क्योंकि वो एक फिक्स बताया जाता है. ये नहीं कि आपको हो सकता है माइट पॉसिबल भी कि 1 साल के बाद आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाए, सेकेंड ईयर में कम हो, तो वो आपको एक लमसम बता रहे हैं. At the start of the period, the unknown element is the future price P(T) plus 1, but investors do have some expectations of that price, thus giving an unexpected rate of return. यानी कि आप इन्वेस्टर्स के पास, क्योंकि वो आप बात करें कि मार्केट्स इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट, तो इन्वेस्टर्स के पास कुछ ना कुछ उस चीज की इंफॉर्मेशन होगी. और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल हो जाता है आपकी मार्केट इन द इक्विलिब्रियम रिटर्न के. This equation tells us that current prices in the financial market will be set so that the optimal forecast of the securities return using all available information equals the security equilibrium return. अगर इसको हम सिंपल टर्म में देखें तो करंट प्राइसेस इन द फाइनेंशियल मार्केट विल बी सेट सो दैट द ऑप्टिमल फोरकास्ट ऑफ द सिक्योरिटी रिटर्न यूजुअली यूजिंग ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन इक्वल्स द सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम रिटर्न्स. इसकी बात देखें कि इसको हम सिंपली फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट इसको कैसे डिस्कस करते हैं. A securities price fully reflect all available information in an efficient market. कि एक ऐसी सिक्योरिटी की प्राइस जो आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो जाहिर है वो कब होगी? जब मार्केट्स आर एफिशिएंट. क्योंकि जब तक आपकी मार्केट्स एफिशिएंट नहीं है आप कैसे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? जब तक आपकी मार्केट्स एफिशिएंट होंगी तो यू आर इन द पोजीशन दैट सिक्योरिटीज प्राइस फुली रिफ्लेक्ट ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन. ये एक एग्जाम्पल है, मैंने इसमें थोड़ा सा आपको, ताकि जाहिर है अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे तो कंसेप्ट आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, आपको थोड़ा सा चेंज, क्योंकि अगर हम थ्योरेटिकली चीजों को पढ़ते रहें तो माइट पॉसिबल भी यू गेट बोर्ड. तो इसलिए मैंने इसमें एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करती हूँ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में. पहले आप गौर से सुने कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज दैट अ शेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट had a closing price yesterday of $90. ठीक है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट शेयर है जिसकी क्लोजिंग प्राइस $90 है. बट न्यू इन्फॉर्मेशन वाज अनाउंस्ड आफ्टर द मार्केट क्लोज्ड दैट कॉज्ड द डिवीजन इन द फॉरकास्ट ऑफ द प्राइस फॉर द नेक्स्ट ईयर टू गो टू $120. देखिए आपके पास जो इनिशियल में आपको पता चला कि आज जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी जो शेयर की क्लोजिंग प्राइस है वो $90 है, लेकिन साथ ही आपको ये पता चला कि मार्केट क्लोज के बाद की नेक्स्ट ईयर जो है वो रिवीजन इन द फॉरकास्ट ऑफ द प्राइस जो है वो $120 होगी. ये आपकी इंफॉर्मेशन है.
ठीक है, क्योंकि हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं एफिशिएंट मार्केट का, तो ये एफिशिएंट मार्केट ही आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। अब आप नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसकी जो हमें गिवन डाटा है उसमें और क्या दिया हुआ है। इफ द एनुअल इक्विलिब्रियम रिटर्न ऑन माइक्रोसॉफ्ट इज 15%, एनुअल इक्विलिब्रियम रिटर्न उसने बताया कि 15% है। व्हाट डज द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इंडिकेट द प्राइस विल गो टुडे व्हेन मार्केट ओपन्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपने बताना है कि आज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या प्राइस बता रही है शेयर की जब आपने मार्केट ओपन हुई। आप अज्यूम कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट के कोई डिविडेंड पे नहीं करा। इसको दोबारा से इस प्रॉब्लम को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि सबसे पहले आपने अज्यूम किया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसके पास जिसकी क्लोजिंग प्राइस आज की जो है वो $90 है। ठीक है, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि नेक्स्ट ईयर की क्लोजिंग जो प्राइस होगी वो $120 है। एनुअल इक्विलिब्रियम रिटर्न आपको 15% बता दिया गया और ये भी साथ अज्यूम किया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे एनी डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। आप कैसे इसको करेंगे, आपने फॉर्मूला पुट किया ऑप्टिमल फोरकास्ट ऑफ द रिटर्न। ठीक है, वो 15% आपको बता दिया गया। ठीक है, फिर आपके पास है इक्विलिब्रियम रिटर्न, क्योंकि आपके पास इक्विलिब्रियम रिटर्न भी 15% है, क्योंकि आपने ऑप्टिमली फोरकास्ट यही किया कि नेक्स्ट टाइम भी 15% होगा। ऑप्टिमल प्राइस ऑफ द नेक्स्ट ईयर वो $120 है। प्राइस टुडे आफ्टर ओपनिंग आपने देखना है, कैश डिविडेंड पेमेंट कोई भी नहीं है। सिंपल आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की तो आपकी जो प्राइस आज की आई वो $104.35 है। इसमें ये पता चला कि देखिए ये मार्केट एफिशिएंट थी। इस एग्जांपल में बहुत क्लियरली बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर्स हैं, अगर आपको ये ना बताया जाता कि उसकी जो मार्केट क्लोज उनको नेक्स्ट जो वैल्यू $120 है, तो यू आर नॉट इन द एबल टू कैप्चर दैट प्राइस। थोड़ा सा आगे देखते हैं कि रैशनल बिहाइंड द हाइपोथेसिस। देखिए, अगर आप बॉटम लाइन, अगर आप रियल मार्केट की बात करें, रियल वर्ल्ड की बात करें, तो मार्केट कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एफिशिएंट और होली इनएफिशिएंट, कि कभी भी मार्केट ना तो पूरी तरह एफिशिएंट हो सकती है ना ही पूरी तरह इनएफिशिएंट। आप देखिए अपनी रियल मार्केट की बात करें, यूगेन फॉर्मा ने जो बात की थी उसने उस पर थ्योरी भी बनाई, उसने उस पर, इसीलिए जो आप देखिए आजकल के जो बिहेवियरिस्ट हैं वो इस चीज से एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट कभी भी फुली एफिशिएंट या कभी फुली इनएफिशिएंट नहीं हो सकती। उसके पीछे बहुत ज्यादा चीजें हैं, क्योंकि मार्केट इज अ मिक्सचर ऑफ द बोथ एफिशिएंसीज एंड इनएफिशिएंसीज, wherein the daily decisions and events cannot always be reflected immediately into a market। कि आप ना तो डेली डिसीजंस और इवेंट्स आप देखेंगे और वो एकदम मार्केट के ऊपर उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं होता। और अगर आपकी मार्केट, अगर आप ये बिलीव कर लेते हैं कि मार्केट जो है वो एफिशिएंट है, तो फिर तो हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स की बात करेगा, एबनॉर्मल रिटर्न्स की बात करेगा, और जिससे आपकी पूरी मार्केट जो है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए कोई भी मार्केट फुली एफिशिएंट या फुली इनएफिशिएंट नहीं है। However, in the age of information technology, however, markets all over the world are gaining greater efficiency। वही बात है कि टेक्नोलॉजी की बात आ गई, ग्लोबल विलेज की बात आ गई, तो टेक्नोलॉजी ने आपकी मार्केट्स को, आफ्टर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मार्केट आर इन द पोजिशन टू कैप्चर ग्रेटर एफिशिएंसी। IT allows for a more effective, faster means to disseminate information, and electronic trading allows for the prices to adjust more quickly to news and increase the markets। वही बात है कि आपकी कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिकली आप फौरन से इंफॉर्मेशन अपनी पहुंचा देंगे और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो जाएगी। However, while the pace at which we will receive information and make transaction quickens, IT also restricts the time it takes to verify the information used to make a trade। Thus, IT may inadvertently result in less efficiency if the quality of the information we use no longer allows us to make profit-generating decisions। वही बात है कि आपके हर चीज के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। जहां तो आईटी आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली आप अपनी मार्केट में एंटर हो रहे हो, साथ साथ वहीं पे वो रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है कि आपकी जो आपने वेरीफाई नहीं किया क्या इन्फॉर्मेशन ठीक भी है कि नहीं, आपने फौरन उस पर रिस्पॉन्स कर दिया। तो अगेन इट डजंट मीन दैट यू आर वर्किंग एफिशिएंटली, इट मीन्स यू आर वर्किंग इनएफिशिएंटली, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन को देखा ही नहीं है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। ये तो था कि आपने ये देखा कि इसमें आपको ये बताया गया कि आप जो है मार्केट्स आपकी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट क्यों नहीं होती और टेक्नोलॉजी का मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद आप देखें, व्हेन एन अनएक्सप्लॉइटेड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी अराइजेस ऑन ए सिक्योरिटी,
Investors will rush to buy until the price rises to the point that the returns are normal again. देखिए, जब आपको पता चलेगा कि कोई भी ऐसी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी है कि इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो बहुत सारे लोग जाएंगे, क्योंकि जाहिर है एक न्यूज स्प्रेड हो जाएगी और लोग उसमें जाके इन्वेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। जब तक वो इन्वेस्ट करेंगे तो फिर वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे रिटर्न दोबारा आपके नॉर्मल हो जाएंगे। यानी आप बस न्यूज आई कि यहाँ पे आपको एबनॉर्मल रिटर्न मिल सकते हैं, जाहिर है वो सारे के सारे लोग उसको कैप्चर करेंगे, वो जाके वहां पे इन्वेस्ट करेंगे और दोबारा से रिटर्न जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। In an efficient market, all unexploited profit opportunities will be eliminated. कि इस तरह की तमाम पॉसिबिलिटीज जो है वो खत्म हो जाती हैं। नॉट एवरी इन्वेस्टर नीड बी अवेयर ऑफ एवरी सिक्योरिटी एंड सिचुएशन। जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टर को हर सिक्योरिटी हर सिचुएशन के बारे में पता हो। और जितनी ज्यादा आपको प्रॉफिट, आप अगर अपनी हर न्यूज पे अपनी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी पे खबर रखेंगे तो ऑलरेडी आपका जो है ना प्रॉफिट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कि वाई एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस मेक सेंस, क्या आपकी सेंस बन रही है कि जब आप देख रहे हैं कि फॉरकास्टेड रिटर्न जो है वो ज्यादा है इक्विलिब्रियम रिटर्न से, तो आप देखें वहां पे आपकी तमाम अनएक्सप्लॉइटेड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं। एफिशिएंट मार्केट कंडीशन होल्ड्स इवन इफ दे आर अनइन्फॉर्म्ड इरैशनल पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। अब देखिए स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की हम यहाँ पे बात करेंगे, स्ट्रॉन्गर वर्जन की। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट्स हैं जिन्होंने ईएमएस से एक वन स्टेप वो आगे गए इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। उन्होंने कहा कि जरूरी ये ना देखें कि मार्केट्स कितनी एफिशिएंट हैं, बल्कि they are of the view that expectations are optimal forecast using all available information, but they add the condition that an efficient market is one in which prices are always correct and reflect market fundamentals. देखिए जो ईएमएच बात करता है, जब हम ईएमएच की बात करते हैं तो वहां पे आता है कि मार्केट्स आर इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट, लेकिन जब आप देखें उसमें और रिसर्चर्स ने उसमें पॉइंट उसने कहा कि ये ना हो कि आपकी मार्केट्स हमेशा इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट हो, बल्कि ये जरूरी है कि प्राइसेस आर करेक्ट एंड रिफ्लेक्ट मार्केट फंडामेंटल्स। Items that have a direct impact on the future income stream of the securities is known as market fundamentals. Market fundamentals में वो तमाम items आते हैं जो आपकी मेन स्ट्रीम फ्यूचर इनकम स्ट्रीम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्गर वर्जन की बात करें ईएमएच की, तो ये वन स्टेप फर्दर है। ईएमएच आपको बताता है कि मार्केट्स को इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसका ज्यादा मतलब आप ज्यादा डेप्थ में जाके देखें, जब फर्दर रिसर्चर्स ने ये एक्सप्लोर किया कि ना सिर्फ ये हो कि मार्केट्स जो है वो आर इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट, बट प्राइसेस रिफ्लेक्टेड आर करेक्ट एंड रिफ्लेक्ट मार्केट फंडामेंटल्स। फिर the stronger view of the market efficiency has several important implications in the academic field of finance. उसमें कुछ implications है। Number one, it implies that an inefficient capital market, one investment is as good as another because the security prices are correct. वही बात आ रही है कि प्राइसेस करेक्ट होनी चाहिए। जब प्राइसेस करेक्ट होंगी तो आपको पता चलेगा कि ये इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू अदर ज्यादा अच्छी है। It implies that a securities price reflect all available information about the intrinsic value of the security. वही बात कि intrinsic value को या fundamental value कहा जाता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो तमाम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे regarding the fundamental value. Third point है, it implies that security prices can be used by managers of both financial and non-financial firms to assess their cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग देयर इन्वेस्टमेंट। देखिए इसमें दो पॉइंट्स देखें, आपने क्या कहा है कि सिक्योरिटी प्राइसेस कैन बी यूज्ड बाय द मैनेजर्स ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फर्म्स। कौन कौन इसको यूज करेगा? फाइनेंशियल फर्म्स एंड नॉन फाइनेंशियल फर्म्स, इन ऑर्डर टू असेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग देयर इन्वेस्टमेंट, and hence that security price can be used to help them make the correct decisions about whether a specific investment is worth making or not. देखिए आपका जो थर्ड इसका पॉइंट है वो ये बताता है कि आपकी जो सिक्योरिटी बताती है प्राइसेस जो है उसको वो जब देखिएगा एक्यूरेटली तो ये बताएगा क्या आपकी ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जहां आप करें इज इट वर्थ मेकिंग और नॉट। देखिए आपने स्ट्रॉन्गर विजन में तीन चीजें देखी। पहली बात आपने देखी कि जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है वो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बताए, यानी फंडामेंटल वैल्यू बताए।
सेकंड, आपको ये जो प्राइजेस बताए वो करेक्ट बताए ताकि आपका बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो। थर्ड, ये कि जो इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फर्म्स दोनों यूज करेंगी इन ऑर्डर टू असेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ताकि इन ऑर्डर टू नो दैट विच इन्वेस्टमेंट इज वर्थ मेकिंग। फेवरेबल एविडेंस, इसमें फेवरेबल एविडेंस में आप देखें कि इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एंड म्यूचुअल फंड्स डाउन बीट द मार्केट, कि आपके जो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं वो कभी भी मार्केट को बीट नहीं कर सकते। स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, कि वो आपको सही इंफॉर्मेशन बताए। स्टॉक प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट्स क्लोज टू रैंडम वॉक। टेक्निकल एनालिसिस डज नॉट आउट परफॉर्म द मार्केट। ये बेसिकली एविडेंस, फेवरेबल एविडेंस है कि कौन कौन से फेवरेबल एविडेंस आते हैं इन एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। Performance of the investment analyst and mutual fund should not be able to constantly beat the market. इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे वो क्यों नहीं बीट कर सकती। पहली बात, इन्वेस्टमेंट डॉट बोर्ड, इसमें ये आप वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आता है इन्वेस्टमेंट डॉट बोर्ड के बारे में, उसमें आप देखें तो उन्होंने अक्सर ये बताया होता है कि हाउ ऑफन बीट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को बीट किया जाता है। अगर कभी आपको मौका मिले या आप इंटरनेट पे गूगल आउट करें, वहां पे वॉल स्ट्रीट जर्नल में जाके इन्वेस्टमेंट डॉट बोर्ड को देखें तो वो आपको ये बताएगा कि किस तरह वो मार्केट एफिशिएंसी में जो है मैनेजर्स आर इन द पोजीशन टू बीट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड्स का क्या है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो बहुत ज्यादा कभी भी आउट परफॉर्म द मार्केट नहीं, एवरेजली काम करते हैं। इसलिए देखिए, इसमें पता आपको एक कंसेप्ट आ जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो आज आपने वो फर्स्ट पीरियड में म्यूचुअल फंड जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, मार्केट को बीट कर रहा है, तो वो नेक्स्ट ईयर में भी जाके मार्केट को बीट करेगा। इट इज नॉट नेसेसरली। इसमें हम आगे जाके जब बिहेवियरल फाइनेंस की बात करेंगे तो वहां पे विनर लूजर इफेक्ट पढ़ेंगे। विनर लूजर इफेक्ट बेसिकली किसे कहते हैं? विनर लूजर इफेक्ट वो होता है कि अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए कि जो पीपल हु आर कॉन्टिन्यूसली विनर फॉर द 3 years, in the next years they underperform the market. जो आज के विनर हैं वो कल के लूजर्स होंगे, and the people who are the losers for the 3 years outperform the market in the next 3 years. तो सेम इन द केस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स का कभी ये नहीं है कि वो हमेशा आउट परफॉर्म, उनका जो फर्स्ट पीरियड में हुआ है वो सेकंड, इट इज नॉट नेसेसरी। दैट्स व्हाई द म्यूचुअल फंड्स आर नॉट इन द पोजीशन टू बीट द मार्केट। और उसके अलावा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, यानी आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन है, तो देन यू आर इन द पोजीशन टू बीट द मार्केट। और वो आपको पता है कि वो अगर आप इस तरह की जो इनसाइड इंफॉर्मेशन, अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो उसे वहां पे इलीगल कहा जाता है। कुछ कंट्रीज में इसको इलीगल नहीं कहा जाता, लेकिन नॉर्मली इनको यूएस मार्केट की बात करें तो उसे इलीगल कहा जाता है। दैट्स व्हाई जो आपकी इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं वो कभी भी मार्केट को बीट नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर 1 तो ये है, वही विनर लूजर इफेक्ट की बात आ गई। नंबर 2 ये है कि दे आर नॉट इन द पोजिशन टू गेट द इनसाइड इंफॉर्मेशन, तो वो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इन द पोजिशन टू बीट द मार्केट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स। अब अगला आपसे मैं पूछती हूँ कि डू स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एज द ईएमएच प्रिडिक्ट्स दे विल? ईएमएच कहता है कि स्टॉक प्राइसेस को करेक्ट इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए। आप लोग बताएं मुझे कि व्हाट आर योर व्यूज, आप लोग क्या कहते हैं? जो अभी तक आपने एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, डू यू एग्री दैट द स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन? मेजॉरिटी आप में से क्या कहते हैं? लेट मी know your views, then I am going to discuss that. Yes, चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। Thus, if information is already publicly available, तो कोई भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट होगी तो जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रही हो। इसमें यहाँ पे आप पोस्ट अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट के बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। बिहेवियरिस्ट व्यू है कि वो किस तरह बताते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टॉक प्राइसेस जो है आपको पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन तो बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता, क्योंकि हो सकता है ये इंफॉर्मेशन पहले से ऑलरेडी हो। और देखिए इसमें आपकी बता रहा है कि इंपेरिकल एविडेंसेस कंफर्म्स दैट फेवरेबल अर्निंग अनाउंसमेंट्स और अनाउंसमेंट्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट्स। यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट्स का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक इनटू मल्टीपल शेयर्स।
which is usually followed by higher earnings. जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि आप डाइवर्सिफाइड कर लेते कि छोटे छोटे आप 1000 रुपीज को 10 डिफरेंट लोगों को देते हैं इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाइड योर रिस्क. इसी तरह आप स्टॉक स्प्लिट करते हो. आर डिवीजन ऑफ द शेयर ऑफ स्टॉक इनटू मल्टीपल शेयर्स which is usually followed by the higher earnings. डाउन ऑन एवरेज कॉस्ट स्टॉक प्राइसेस टू राइज. ठीक है, इसमें यही वही बता रहा है कि इंपेरिकल एविडेंस क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो आपकी स्टॉक प्राइस को इंक्रीज ही करे. रैंडम वॉक बिहेवियर ऑफ स्टॉक प्राइसेस. रैंडम वॉक बिहेवियर ऑफ द स्टॉक प्राइसेस दैट इज फ्यूचर चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस शुड बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बी अनप्रडिक्टेबल. वही बात है कि आप अपनी हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर, अपनी हिस्टोरिकल प्राइसेस के ऊपर अपने फ्यूचर को बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं. कि देखिए, अगर आपको पता है कि इफ द स्टॉक इज प्रेडिक्टेड टू राइज पीपल विल बाय टू इक्विलिब्रियम लेवल. क्या आपको पता है कि अगर आपका स्टॉक जो है वो ज्यादा हो रहा है तो लोग इक्विलिब्रियम लेवल से ज्यादा खरीद लेंगे. इफ द स्टॉक इज प्रेडिक्टेड टू फॉल पीपल विल सेल टू इक्विलिब्रियम लेवल. तो आपका क्या होगा, प्राइस चेंजेस तो जीरो हो जाएगी इक्विलिब्रियम लेवल पे. इफ द स्टॉक प्राइस इज प्रेडिक्टेबल दे वर कॉजिंग द अबव बिहेवियर. कि अगर आपको स्टॉक प्राइस का पता है तो दोबारा अबव लेवल पे हो जाएगा. कि आपको रैंडम बिहेवियर ये है कि आप अपनी हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर कभी भी अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए उसको वीक फॉर्म एफिशिएंसी कहा है, जहां पे आप हिस्टोरिकल प्राइसेस के ऊपर अपने फ्यूचर प्राइसेस को प्रेडिक्ट करते हैं. टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस मीन्स टू स्टडी पास्ट स्टॉक प्राइसेस डेटा एंड सर्च फॉर पैटर्न्स सच एज ट्रेंड्स एंड रेगुलर साइकिल्स suggesting that when to buy and sell stocks. ये वही बात है कि आप देखें आपको टेक्निकल एनालिसिस क्या है. प्रीवियसली आप स्टॉक को स्टडी करते हो, उनमें ट्रेंड देखते हो कि अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है. आप ये देखते हो कि क्या आपको इधर यू हैव टू बाय और सेल स्टॉक्स. इसमें आपके 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट टेक्निकल एनालिसिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. The simplest way to understand why is to use the random walk result that holds us past stock price data cannot help predict changes. Therefore, technical analysis which relies on such data to produce its forecast cannot successfully predict changes in the stock prices. Now we are going to discuss the unfavorable evidence. Unfavorable evidence में first point है small firm effect. Small firms have abnormally high returns. Then January effect. ये आपने ऑलरेडी, जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा जनवरी इफेक्ट, ब्लैक मंडेज, मार्केट ओवर रिएक्शन, एक्सेसिव वॉलेटिलिटी, मीन रिवर्जन, न्यू इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज इमीडिएटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टॉक प्राइसेस. इन सबको हम बारी बारी जाके देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल फर्म इफेक्ट इज एन एनोमली. Many empirical studies have shown that small firms have earned abnormally high returns over longer periods of time, even when the greater risk for these firms has been considered. देखिए, आपकी behavioral finance में anomalies आ जाती हैं, तो ये एक anomaly है, ये एक prediction है कि small firms जो हैं वो हमेशा ज्यादा abnormal high returns over the longer period of time. क्यों? The small firm effects seem to have diminished in recent years, but is still a challenge to the theory of the efficient market. बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस पे काम किया, बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई in order to explain the small firm effect, suggesting that it may be due to rebalancing of the portfolios by institutional investors. It may be tax issues, low liquidity of small firms, large information cost in evaluating small firms, or an inappropriate measurement of risk for the small firm stocks. देखिए, आपने सबसे पहले देखा कि स्मॉल फर्म इफेक्ट्स में क्या है कि आपकी प्रेडिक्शन है कि स्मॉल फर्म ऑलवेज जनरेट हायर एबनॉर्मल रिटर्न्स. वो क्यों होता है? उसमें 3-4 पॉइंट्स मैंने आपसे ऑलरेडी बता दिए हैं. टैक्स इश्यूज हैं, इनएप्रोप्रिएट मेजरमेंट ऑफ रिस्क है. जनवरी इफेक्ट तो आप लोगों को पता होगा कि हम हमेशा स्टॉक एक्सचेंज की जब भी बात करते हैं तो जनवरी इफेक्ट इज अ मेजर इम्पैक्ट, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है. आपको पता है दिसंबर में एक ईयर खत्म होता है. जनवरी इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ द स्टॉक प्राइसेस टू एक्सपीरियंस एन एबनॉर्मल पॉजिटिव रिटर्न्स इन द मंथ ऑफ जनवरी.
that is predictable and hence inconsistent with the random walk behavior. कि जनवरी इफेक्ट में आपको हमेशा पता है कि you are going to seek abnormal returns. Next point. इसलिए वो इसमें थोड़ी सी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि बिफोर द एंड ऑफ द दिसंबर वो अपने स्टॉक्स को सेल आउट कर दे। वो क्यों करता है इस तरह? इसलिए करता है कि वो अपने टैक्स बर्डन को कम करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। और फिर जब वो न्यू ईयर स्टार्ट होगा जनवरी में तो वो रीपरचेज करेगा अपने स्टॉक को। जब रीपरचेज करेगा तो प्राइस ऑफ स्टॉक जो है ज्यादा होगी। जब प्राइस ऑफ स्टॉक ज्यादा होगी तो एबनॉर्मल हाई रिटर्न होगा। आपको समझ क्लियर हुआ कि जनवरी इफेक्ट में क्या होता है? जनवरी इफेक्ट में ये होता है कि एट द एंड ऑफ दिसंबर इन्वेस्टर्स की कोशिश होती है कि अपने तमाम स्टॉक को सेल आउट कर दें, इसलिए कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं और फिर इन जनवरी में वो रीपरचेजिंग ऑफ शेयर करते हैं। जब एक्सेसिव रीपरचेजिंग होती है, स्टॉक प्राइस ज्यादा होती है, जब प्राइस ज्यादा होती है तो दैट लीड्स टू द एबनॉर्मल रिटर्न्स। लेकिन अगेन इसमें एक और बात हो जाती है कि वो फिर हर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसा क्यों नहीं करता? प्राइवेट पेंशन फंड्स हैं वो क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों नहीं अपने इनकम टैक्सेस को कम करते? लेकिन जो एक थ्योरी में रिसर्चर्स ने जो रिसर्च की वो यही कहती है कि दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द जनवरी इफेक्ट। मार्केट ओवर रिएक्शन. Recent research suggests that stock prices may overreact to the new announcements and that the prices errors are corrected only slowly. कि जब भी कोई नई न्यूज आएगी तो स्टॉक प्राइस उसको ओवररिएक्ट करेगी। वो कैसे करेगी? देखिए, when corporation announces a major change in earnings, say a large decline, the stock prices may overshoot and as a result initial large decline and that may rise back to the more normal levels over a period of several weeks. तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम इसको हम ईएमएच से देखें तो ये मार्केट ओवर रिएक्शन वायलेट्स द ईएमएच, क्योंकि इन्वेस्टर जब आपको एबनॉर्मल हाई रिटर्न्स की तरफ जाता है तो एवरेज में वो बहुत ज्यादा स्टॉक को खरीद लेता है कि कोई अनाउंसमेंट आई, उसने स्टॉक को खरीदा और फिर दोबारा से सेल कर दिया, तो वो एबनॉर्मल रिटर्न्स की तरफ नहीं जाएगा, वो दोबारा नॉर्मल लेवल की तरफ आ जाएगा। एक्सेसिव वॉलेटिलिटी कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस ऑफ स्टॉक मार्केट में आती हैं, तो उसकी वजह से भी अब देखिए रिसर्चर्स ने बहुत ज्यादा देखा कि S&P 500 स्टॉक इंडेक्स में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। जब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आएंगी, कहीं पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं पे आप बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं, तो ये फ्लक्चुएशंस भी जो हैं इसकी वजह से भी आपकी जो है मार्केट जो है वो फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी फंडामेंटल वैल्यू को इफेक्ट करी होती है। Mean reversion. फिर some researchers have found that the stock with low returns today tend to have high return in the future and vice versa. ये मैं आपको विनर लूजर इफेक्ट बता चुकी हूँ कि मीन रिवर्जन को आप विनर लूजर इफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि विनर लूजर इफेक्ट में भी तो यही होता है कि those who are going to beat the market for the 3 years, in the next 3 years they will underperform the market, and those who are not performing well in the 3 years are going to outperform the market. New information is not always immediately incorporated in stock prices. वो आपको नाम से पता चल रहा है कि जो जितनी भी न्यू इन्फॉर्मेशन आई है वो बहुत जल्दी स्टॉक प्राइस में इनकॉर्पोरेट नहीं की गई, जिसकी वजह से जो है आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट, ये भी आपकी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के साथ इनकंसिस्टेंट है। उनकी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहती है मार्केट्स आर इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट। फिर आप एक मिनी केस है आइवन बॉस्के का कि इन 1980 जो है मिस्टर बॉस्के मेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर हिमसेल्फ एंड इन्वेस्ट इन टेक ओवर टारगेट्स। तो उसने क्या एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को किस तरह प्रेडिक्ट किया होगा, किस तरह ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने इस मिनी केस को देखना है कि इसमें क्या है। बेसिकली तो ये एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के साथ ही है कि इम्प्लीकेशंस फॉर इन्वेस्टिंग। इसमें 3-4 बातें कि डू स्टॉक प्राइसेस ऑलवेज राइज व्हेन देयर इज अ न्यू गुड न्यूज, शुड यू बी कैपिटल ऑफ द हॉट टिप्स, एफिशिएंट मार्केट प्रिस्क्रिप्शन फॉर द इन्वेस्टर, हाउ वैल्यूएबल आर पब्लिश्ड रिपोर्ट्स बाय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। अब देखिए
उसमें पहली न्यूज है कि क्या आपको हमेशा शुड यू बी कैपिटल ऑफ द हॉट टिप्स, जरूरी नहीं है कि आपको एबनॉर्मल हाई रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि देखिए आपको इन्वेस्टर्स आप वही बात है कि आप ईएमएच कहता तो है, लेकिन आप देखें कि बिहेवियरिस्ट इस व्यू को नहीं मानते। Do stock prices always rise when there is a good news? No. In an efficient market, stock prices will respond to announcement only when the information being announced is new and unexpected. जरूरी नहीं वो गुड न्यूज को ही करेंगे। अगर आपको पता है if the good news was expected, there will be no stock price response, and if the good news was unexpected, there will be stock price response. कि आपको इन्वेस्टर्स को ये नहीं चाहिए कि वो कॉन्टिन्यूसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज करते रहे, क्योंकि इससे उनको प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी कमीशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इससे बेहतर है कि वो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी के ऊपर इन्वेस्टर जो है वो फोकस्ड करे कि वो बाय करे और उसको होल्ड कर दे फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जो है उसको दिस विल लीड टू सेम रिटर्न्स ऑन एवरेज बट द इन्वेस्टर्स नेट प्रॉफिट विल बी हायर। देखिए रिटर्न तो उसको उतना ही मिलेगा कि उसने बाय किया और होल्ड कर लिया, बजाय इसके कि वो कॉन्टिन्यूसली बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, उसमें वो अपनी कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसको जो नेट बेनिफिट है उसका नेट प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा कि जब वो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को अपनाता है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि EMH indicates that no mutual fund can constantly outperform the market. It means that investors should not buy into one that has high management fees or that pays sale commission to brokers, but rather should purchase a no load commission fee mutual fund that has low management fees. कि देखिए आपका अब उसमें यह कि सडन और ड्रामेटिक मार्केट डिसीजंस किस तरह होते हैं, सिर्फ उसमें एक बबल इज अ सिचुएशन इन विच द प्राइस ऑफ द एसेट डिफर्स फ्रॉम द फंडामेंटल मार्केट वैल्यू, कि वहां पे आपकी बबल एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपकी प्राइस जो है बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू फंडामेंटल मार्केट वैल्यू। अब हम बिहेवियरल फाइनेंस की बात करते हैं कि बिहेवियरल फाइनेंस का क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे EMH थ्योरी के साथ और बिहेवियरल फाइनेंस किस तरह। सबसे पहले कि बिहेवियरल फाइनेंस होता क्या है। बिहेवियरल फाइनेंस मींस दैट कि इसमें आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी, कॉग्निटिव थिंकिंग और ह्यूरिस्टिक्स वगैरह आती हैं। देखिए लोग डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। अब जो हम EMH की बात करते हैं, यूगेन फॉर्मा एज अ ट्रेडिशनिस्ट व्यू दे रहा है, लेकिन बिहेवियरिस्ट उस व्यू से डिफर करते हैं। वो किस तरह कि आप देखें सबसे पहले ये कि आपकी डिफरेंट बाइसेस हैं। देखिए आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि आप जो हैं आप एकदम से स्टॉक प्राइसेस आपको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रही है पब्लिक, आप फौरन से उसमें करते हैं। लेकिन बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें जब इस स्टॉक में उन्होंने प्रीवियसली इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने बहुत सारा गेन मिला था, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो इट माइट पॉसिबल भी कि वो इस इन्फॉर्मेशन से जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन आई है स्टॉक प्राइस पे वो पूरी तरह बेनिफिट ना हो, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत डिसीजन कर लेते हैं। डिफरेंट बाइसेस हैं जिसमें आपकी ओवर कॉन्फिडेंस है, रिप्रेजेंटेटिवनेस है कि आप किसी चीज को बेंचमार्क बना लेते हो। बाज दफा ये होता है कि आपको पता है अवर्जन टू श्योर लॉस, क्योंकि यहाँ श्योर लॉस ही होगा। इसलिए बिहेवियरल फाइनेंस और ट्रेडिशनल फाइनेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बिहेवियर्स बेसिकली कहते क्या हैं। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट एट्रीब्यूट द इम्परफेक्शन इन फाइनेंशियल मार्केट्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव बायसेस सच एज ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर रिएक्शन, रिप्रेजेंटेटिव बायस, इंफॉर्मेशन बायस एंड वेरियस अदर प्रेडिक्टेबल ह्यूमन एरर्स इन रीजनिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। These have been researched by psychologists such as Daniel, Richard and Paul. These errors in reasoning lead most investors to avoid value stocks and buy growth stocks at expensive prices, which allow those who reason correctly to profit from bargain is neglected value stocks and overreacted selling of the growth stocks. वही के बिहेवियरिस्ट का ये व्यू है कि आप जब मार्केट में आपको कोई न्यूज वगैरह मिलती है तो माइट पॉसिबल भी आपका गलत डिसीजन हो गया, क्योंकि आप डिफरेंट थिंकिंग या आपकी डिफरेंट आपकी बाइसेस है। Today, before ending the lecture of today, I'm going to summarize the chapter. In this chapter, this is the last chapter of the market related to market, financial markets.
in this chapter we examined the theory of how both old and new information are expected to incorporate it into stock prices. Then we discussed the efficient market hypothesis. We discussed three types of market: semi-strong market, strong efficiency, and weak form efficiency. Then we discussed the various test of the hypothesis and how the hypothesis will hold. Then in the last we discussed that what is the behaviorist view. We examined another important area of research to explain how stock prices are formed based on psychological factors affecting investors. और उसके अलावा हमने देखा कि आपकी जो आप जब मार्केट एफिशिएंसी की बात करते हैं तो जो यूगेन फॉर्मा की जो रिसर्च थी उसने अपनी रिसर्च को कैसे एक्सप्लोर किया और कैसे फिर बिहेवियरिस्ट आए 1990 के बाद उसकी थ्योरी को जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो नहीं दी गई, क्योंकि न्यू रिसर्चर्स आए, उन्होंने एक इमर्जिंग एरिया फाइनेंस को बिहेवियरल फाइनेंस कहते हैं, उसको उन्होंने देखा। अगर उस कंसेप्ट को देखें तो ट्रेडिशनलिस्ट का बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट होगा और बिहेवियरिस्ट एक अलग व्यू से होंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी।